السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 27 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ البقرہ آیت 168 سے 178 تک۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جیسے مکان کی رونق و آبادی رہنے والے سے ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کے دل کی رونق اور آبادی قرآن کریم کو یاد رکھنے سے، اس کو پڑھنے سے ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص قرآن کریم سے دور ہو جاتا ہے تو اس کا دل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ویران ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پر نور و پر رونق کر دے اور ہمیشہ اس قرآن کریم کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما، ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت 168۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال ہے اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج جو ہمارے لیسن کی آیتیں ہیں ان میں زیادہ تر کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے لوگوں سے خطاب ہے، یا ایھا الناس کہہ کے اللہ تبارک تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، سارے انسانوں سے خطاب ہے۔ سارے انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ زمین میں جو حلال چیزیں ہیں اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ آپ کھاؤ، وہ آپ کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، وہ تو تمہارا بے شک کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ خاص حکم دیا ہے۔ دراصل عرب میں یہ رواج تھا کہ بتوں کے نام پر کوئی نہ کوئی وہ جانور چھوڑ دیتے تھے، اور جیسے وسیلہ، صاحبہ، حام، اس طرح سے وہ کچھ گائے یا اونٹ یا سانڈ وغیرہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں لیتے تھے۔ کہتے تھے ہم نے تو اپنے سے بتوں کے نام پر وقف کر دیا، اس کو چھوڑ دیا ہے، اب اس سے ہم کوئی بھی نہ تو ہم اپنے سواری اس پہ بٹھائیں گے، نہ اس سے دودھ وغیرہ یا اس کا کوئی بھی نفع اور کوئی بھی فائدہ اس سے حاصل نہیں کرتے تھے، اور اس جانوروں کو وہ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، یعنی کہ حلال کردہ چیزوں کو وہ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ اور اس چیز سے تو آپ اور ہم سب اچھے سے واقف ہی ہیں، کیونکہ ہم سب انڈیا میں ہی رہتے ہیں۔ جیسے مثلا ہمارے کہ ابھی سڑکوں پہ نا بے وجہ گائے اور جو ہے بیل کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں گاؤں آتا ہے، ان کو ہم نہیں کھا پی سکتے ہیں، اور یہ ہماری میاں ہے، اور جو بھی وہ ایسی طرح سے اس طرح سے ان کے یہاں رواج ہے نا، بس سیم اسی طرح سے زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ بھی اسی طرح جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے تھے اپنے بتوں کے نام پر، اور کہتے تھے کہ ہم ان سے اب کوئی نفع نہیں اٹھائیں گے، کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، یہ ہمارے بتوں کے نام پر ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور بس وہ کھلے میں ایسے ہی چلتے تھے، پھرتے تھے، اور پھر ان کی کوئی بھی ایسا مطلب کوئی فائدہ اس سے اٹھا ہی نہیں سکتا تھا، بس کھلا چھٹا چھوڑ دیا ان کو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم کیا کرو، کلو کھاؤ، مما جو کچھ بھی ہے، فی الارض زمین میں، زمین میں جو بھی چیزیں ہیں، تمام چیزیں وہ کیا ہے؟ کھاؤ۔ کھانے کی دو شرط اللہ نے بتائی ہے، پہلا ہے حلال اور دوسرا ہے طیب۔ کھاؤ پیو حلال اور طیب، یعنی کہ اللہ نے جو بھی حلال کیا ہے نا، آپ وہ سب کچھ کھا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے حلال کیا ہے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے انسان اپنے اوپر ان کو حرام کر لیتا ہے، جیسے مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ اللہ نے اونٹ، گائے، بیل، بھیڑ، بکری، یہ سب اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا، لیکن ان مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا؟ اونٹ، گائے، بیل وغیرہ کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کو اپنے بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر کھلا آزاد چھوڑ دیا تھا، اور اپنے اوپر انہوں نے ان کو حرام کر لیا تھا۔ اس طرح سے وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا اور اس کو ایسے ہی کھلے میں چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہے ہیں، سارے انسانوں سے خطاب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کھاؤ پیو اللہ کی حلال کردہ چیزیں اور طیب۔ تو کھانے کی دو شرائط ہیں، پہلا ہے حلال اور دوسرا ہے طیب۔ تو حلال چیزیں کھانی ہے اور طیب چیزیں کھانی ہے۔ پہلی کنڈیشن ہے، پہلی شرط ہے کہ انسان حلال کھائے اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرے، یعنی شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کرے۔ جس طرح سے مشرکین مکہ نے اپنی بتوں کے نام پر وقف کردہ جانوروں کو حرام کر لیا تھا،
जिसकी तफ़सील सूरह अनाम में भी आएगी। हदीस में भी आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने बंदों को हनीफ पैदा किया है, बस शैतान ने उनको उनके दीन से गुमराह कर दिया है, और जो चीज़ें मैंने उनके लिए हलाल की थी वो उसने उन पर हराम कर दी हैं। यानी जब इंसान शैतान की नक्शे कदम पर चलेगा, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, इसीलिए अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि शैतान के कदमों पर तुम ना चलो। तो अल्लाह ताला की हर नाफरमानी के जो काम जब इंसान करता है तो फिर क्या है, वो शैतान के कदमों की पैरवी होती है। तो शैतान के रास्ते पर चलने से अल्लाह तबारक ताला ने मना किया है। हर वो काम जो अल्लाह की इताअत से दूर कर दे और अल्लाह की नाफरमानी से भरा हुआ हर वो रास्ता, वो शैतान का रास्ता है। अल्लाह की नाफरमानी के हर काम, वो सारे काम शैतान के कदमों की पैरवी करना है। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, कि ना तुम जो है शैतान की कदमों की पैरवी करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तो तुम्हारे लिए क्या हुआ है, खुला हुआ दुश्मन है, ऐसा दुश्मन जिसके बारे में हमको बता दिया गया है। यानी एक जैसे वॉर का जो प्लेस होता है, एक जंग का मैदान होता है, सामने वाला हमारा दुश्मन है, उसको हम किस तरह से दोस्त दोस्त मान नहीं सकते हैं ना, इसी तरह से अल्लाह तबारक तआला ने फरमा दिया, इस दुनियावी ज़िंदगी में जो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, जिसकी दुश्मनानी अल्लाह तबारक तआला ने ज़ाहिर कर दी है, वो तो आदम अलैहिस्सलाम से के वक़्त से सारे इंसानों का दुश्मन है, और उसने कसम खा-खा के अल्लाह से वायदा किया है कि अल्लाह तबारक तआला, हम आपके बंदों को हर तरह से बहकाएँगे, हर तरह से उनको उनके रास्तों में बैठेंगे, उनके सीधे रास्ते में बैठेंगे, हर बुरे काम करवाने की हम पूरी पुरज़ोर कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन मेरा ज़ोर आपके उन मोमिन बंदों पे नहीं चलेगा जो आपके लिए खालिस हैं। तो ये इस तरह से उसने चैलेंज देकर अल्लाह से आया है ये शैतान, ये इब्लीस, और अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, वो तो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो आज देखें कि कितने लोग हैं ना अपने दुश्मन को पहचानते, कोई नहीं पहचानता है, और हर कोई अपनी ख्वाहिशात, नफ्स की पैरवी करता है। नफ्स की पैरवी करने से बचे इंसान, क्योंकि नफ्स तो अक्सर की जो नफ्स होती है वो बुराई पर ही इंसान को हुक्म देती है, बुराई की तरफ लेके जाती है। अच्छाई की तरफ नफ्स बहुत कम ही लेके जाती है। और दूसरी चीज़, जो खून में रवानी करके जो इब्लीस है ना, वो दौड़ता है इंसान को बुरे-बुरे ख़यालात, और जो बुराई होती है ना उसको वो अच्छाई करके दिखाता है। हर बुराई का काम उसने अच्छाई करके दिखाया है कि ये तो बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आता है, बहुत एन्जॉयमेंट है। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे मूवीज़ है, पिक्चर्स है, सीरियल्स है, नाटक है, म्यूज़िक्स है, और जितने भी कम इंसान कपड़े पहनेगा ना फैशन और कल्चर के नाम पे कि फैशन है तो हम इस तरह से लिबास पहनते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं उसने बहुत खूबसूरत बना दी हैं, इसलिए क्योंकि वो क्या है, दुश्मनी कर रहा है। वो चाहता है यही है कि सारे इंसान अल्लाह तबारक तआला की नाफरमानी करें और सारे के सारे इंसान जहन्नुम में डाल दिए जाएँ। तो अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ पे खोल कर आयत वाज़ेह फरमा दी है, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और ना तुम इत्तिबा करना शैतान के कदमों की, क्योंकि वो तो तुम्हारा बेशक खुला हुआ दुश्मन है। आयत 169, इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, वो तुम्हें बदी और बेहयाई का हुक्म देता है, और ये कि वो तुम्हें अल्लाह की निस्बत वो कुछ कहो कि जिसका तुम्हें खुद भी इल्म ना हो। यानी कि वो इब्लीस लोगों को बेहयाई और जो है बदी का हुक्म देता है, और ये भी कि तुम अल्लाह की निस्बत वो कुछ कहो जिसका तुम्हें खुद इल्म ही नहीं है। तो सू से मुराद क्या है? सू से अस्सू जो अल्फ़ाज़ आया है, बिस्सू, बिस्सू यानी अस्सू से है, तो इससे मुराद कोई भी बुराई है, और अल-फ़हशा वो बुराई है जो हद से बढ़ी हुई हो, मसलन हद से बढ़ा हुआ हो, जैसे ज़िना है, चोरी है, डकैती है, शराब है और कत्ल है, ये सारे के सारे काम फ़हशा में आते हैं। यानी शैतान एक तरफ तो माशरे में अखलाकी बुराइयाँ, सूह और फ़हशा को फ़रोग़ देते हैं, और दूसरी तरफ दीन में बिदअत पैदा करके लोगों के अक़ायद और अमाल की ख़राब करता है। तो यानी कि दोनों ही तरीके से इंसान पर वो हमला करता है। ये दोनों ही तरीके वो इंसान को हुक्म देता है कि इन्नमा यामुरुकुम बिस्सुइ वल फ़हशा, अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि शैतान तुम्हें 2 काम करने का हुक्म देता है। यानी कि वो तुम्हें बुराई का भी हुक्म देता है और फ़हशा का करने का हुक्म देता है, और फ़हशा में ये तमाम चीज़ें आ जाएँगी कि इंसान जो बेलिबास जो जो जितने भी कम कपड़े पहनता चले जा रहे हैं, ख़ास करके जो लेडीज़ आजकल की ख़वातीन हैं, जितना भी फ़ैशन के नाम पे ना डीप गला लोग बनवाते हैं या साड़ीज़ पहनते हैं, इस तरह की पूरा उनका जिस्म दिख रहा होता है या इतना बारीक लिबास पहनता है। ख़वातीन अक्सर इतना बारीक लिबास पहनती है कि उनकी हर चीज़ अंदर से नुमायाँ हो रही होती है। ये सब क्या है? फ़ाहिशा है। क्योंकि वो शैतान ख़वातीन के दिल में यही डालता है कि तुम जितना अच्छा और बारीक और इतना फिटिंग का लिबास पहनोगी ना, तुम उतनी ही खूबसूरत दिखोगी, तुम उतनी ही स्लिम ट्रिम दिखोगी। इस तरह से वो ख़वातीन के दिलों में वसवसे डालता है कि अभी तो तुम्हारी जवानी है, अभी तुम इस तरह से फ़ैशन कर लो, अब दिखा लो, फिर तो तुम क्या बुढ़ापे में इस तरह से फ़ैशन करोगी ना। तमाम तरह के वसवसे डालकर वो हुक्म देता है कि इंसान, ख़वातीन ख़ास करके वो
इस तरह के लिबास पहने। और फिर क्या है, जब खवातीन इस तरह से लिबास पहनेंगी तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि वो घर में बैठ के अपने जो है ना ऐसे ही रहे। खास करके तो फिर लिबास पहन के इंसान कहाँ जाता है? अक्सर खवातीन ऐसे लिबास पहनकर पार्टीज अटेंड करती है ना, शादियां वगैरह अटेंड करती हैं, तो फिर वहां पे जाके ऐसा तो नहीं करती है ना कि वो हमेशा हिजाब में ही रहें। एक अच्छी खासी हिजाब में जाने वाली एक खवातीन जब ऐसी पार्टीज में जाती हैं तो वहां पे जल्दी जल्दी सबसे पहला काम यही होता है कि अपना हिजाब उतार करके खवातीन बैग में रख लेते हैं। और बैग में रखने के बाद वो पूरा सब कुछ नुमाया करते हैं, जो उन्होंने बारीक लिबास, फिटिंग का लिबास जो पहना है, डीपिंग गला और साड़ीज़ वगैरह में जो भी उनका पीठ और पेट सब कुछ दिख रहा होता है। तो ये सब कराने वाला कौन है? ये इब्लीस है। इब्लीस ही इंसान के और ख़वातीन के दिलों में डालता है कि तुम इस तरह से ये फ़ैशन करो, तुम अच्छी लगोगी, तुम खूबसूरत दिखोगी, तुम पार्टी की जो है ना रौनक बन जाओगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब देखिए कि वहाँ पर कितने गैर मर्द होते हैं, वो सारे के सारे उसको घूर-घूर के देखते हैं। ख़ास करके जो एक हमारे यहाँ जो ना लानती जिसे कहा जा सकता है कि वीडियो कैमरा ऑन रहता है, लोग मूवीज़ बनवाते हैं शादियों की, मैरिज की और पार्टीज़ की। अब वो कैमरामैन ऐसे घूर-घूर के एक मतलब कि कैमरा तो लगा होता है साथ में, वो भी अपनी आँखें सेक रहा होता है ना, और ना जाने फिर इस तरह से उसने कितने-कितने लोगों को वो चीज़ बना के दिखाया होता है, और ना जाने इस तरह से कहाँ-कहाँ तक वो पिक्चर और वीडियो बन के वो वायरल होती है मैरिज की। इस तरह से वो एक ख़वातीन घर की ज़ीनत से उठ कर के ना जाने कितने आँखों की वो आँखें सेकती है इस तरह से ना। तो शुरुआत किधर से हुई? आप देखिए, शुरुआत तो लिबास से शुरू हुआ ना, जिधर से वो शैतान ने हुक्म दिया कि तुम बहुत खूबसूरत दिखोगी ना, इतनी स्टाइलिश, इतनी बढ़िया तुम ड्रेस सिलवाओ तो तुम सबसे ज़्यादा अच्छी लगोगी। लिबास बनाया है इतना महँगा, इतना स्टाइलिश, अब उसको यूँ ही घर में शेल्फ में तो सजाने वाला नहीं है, तो फिर उसको सबको दिखाना भी है। वो दिखाते-दिखाते कहाँ पहुँच गया ना, गुनाहों के अड्डे पे पहुँच गया। इस तरह से फिर वो ना जाने कितनी आँखों से उसने, आँखों से भी लोगों ने ज़िना किया, और आँखों की आँखों मतलब क्या-क्या गुनाह इस तरह से शामिल हो जाते हैं ख़वातीन के साथ में। तो इस तरह से शैतान ने क्या हुक्म दिया? फ़हशा का हुक्म दिया। तो यहीं से स्टार्टिंग शुरू हो जाती है, फिर कुछ सिरफिरों के दिल भी आ जाते हैं इस तरह से, फिर अफ़ेयर और फ्लर्टिंग सब कुछ शुरू हो जाता है। वहीं से ही शुरुआत कहाँ से होती है? लिबास से। बेपर्दगी से शुरुआत होती है। तो ये जो शैतान है ख़वातीन ख़ास करके और सबको, सारे ये नहीं है कि ख़वातीन को ही, मर्दों को भी ये जो है ऐसे ही हुक्म देता है ना। आज मर्दों का क्या है, वो सिक्स पैक ऐप बनाने या जिम में जाके अपना फिटिंग और ये सब करने, ठीक है, आप एक नियत है, इरादा है कि हम ताकतवर बनना चाहते हैं, कुव्वत वाले बनना चाहते हैं, तो हम अपने आप को मेंटेन करें। लेकिन आप ये एक मर्द इसलिए अपने आप को मेंटेन कर रहा है कि हम सिक्स पैक ऐप बनाएँ और हमें सब ख़वातीन हमें देखें और हमें वाह-वाह कहें, और हम इस तरह से सीरियल्स या पिक्चर्स में हमें जो रोल मिल जाए, तो इस तरह से ये सब जो है क्या है, ये सब फ़ाहिशा है। ये सारी की सारी कैटेगरी फ़ाहिशा में आ जाएगी। तो शैतान तो यही चाहता है कि तुम यही सब करो, और अल्लाह तबारक तआला इसीलिए यहाँ फरमा रहे हैं, इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशा, कि शैतान तो तुमको हुक्म ही देता है बुराई का और बेहयाई का। बेहयाई में सब कुछ आ जाएगा कि मर्द और औरत का आपस में मिल-जुल कर गैदरिंग जो होती है ना, गैदरिंग में आप देखिए क्या होता है, एक-दूसरे को देखा, नज़रें लड़ी और फिर क्या फ्लर्टिंग शुरू हो गई। हालाँकि जो मर्द और औरत पहले ही से शादीशुदा होते हैं, माशरे में कितनी खराबी होती है। अल्लाह तबारक तआला ने जो भी हम सबको हुक्म दिए, वो एक बेहतरीन माशरे, एक सुकून के माशरे के लिए बेहतरीन हुक्म है। जब अल्लाह की हुदूद को इंसान नहीं मानता है, तो ज़बरदस्त परेशानियों में, मुश्किलात में पड़ जाता है। घर तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। फिर अंजाम क्या होता है ना, फ्लर्टिंग के बाद फिर पकड़ता है इंसान, और फिर जो असली जो शौहर होता है इस तरह से इस हाल में पकड़ता है, तो फिर वो फिर फांसी और सज़ा और कत्ल सब कुछ शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि इसके कदमों पे ना चलो, वो तो तुमको हुक्म देता है बुराई का और बेहयाई का, और फ़ाहिशा का तुम्हें हुक्म देता है। तो फ़ाहिशा में तमाम चीज़ें आ जाएँगी कि इंसान बेपर्दा हो, और जो है इस तरह से म्यूज़िक है, नाच, डांस, गाना, बुख़ुल, ज़िना, चोरी, शराब, कत्ल वग़ैरह सब कुछ आ जाता है। यानी इंसान को शैतान हर तरह से जो है परेशान करके और बुरा बना के अल्लाह की नाफरमानी करवाना चाहता है। तो इस तरह से अल्लाह तबारक तआला ने फरमा दिया है। और दूसरी चीज़ एक और अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, व अन तक़ूलू लल्लाहि मा ला तअलमून, और वो तुमसे वो बातें कहलवाता है जो तुम अल्लाह ताला के बारे में नहीं जानते। बुतों को अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है। यानी कि शैतान ही ऐसा है जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है और कहता है कि अल्लाह एक नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह के साथ बहुत सारे लोग हैं। एक मामूली से इंसान, एक पत्थर और दरख्त और जो है सूरज, तमाम चीज़ों को वसवसे डाल कर के इंसान से शिर्क करवाता है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे कि तुम ऐसी बात ना कहो जो तुम्हें पता भी नहीं है। क्योंकि शैतान ने तो कसम खा ही रखी है कि वो तो सबके सबको, इंसानों को जो है जहन्नुम में ले ही किया जाएगा, और वो सारे इंसानों से इस तरह से शिर्क भी करवाएगा, गुनाह भी करवाएगा, कहीं कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अल्लाह तबारक तआला भी हमारे रब हैं, वो हमारा बहुत भला चाहते हैं। उन्होंने हर चीज़ इस कुरान करीम में खोल-खोल कर बयान कर दी है। आपका दुश्मन कौन है? आपका दोस्त कौन है? आपका भला कौन चाहता है? आपका बुरा कौन चाहता है? ये सारी बात अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में बता दी है। आपका एक ईमान वाले का दोस्त अल्लाह हो जाता है। वलीउल्लाह, जब इंसान अल्लाह की
रास्ते पर आता है, हिदायत के रास्ते पर आता है, उस पे साबित कदम रहता है, तो अल्लाह उसका दोस्त होता है। अल्लाह उसका मददगार हो जाता है। लेकिन जब एक इंसान अल्लाह के रास्ते को छोड़कर गैरुल्लाह का रास्ता अपनाता है, गुमराही का रास्ता अपनाता है, तो फिर उसका जो दोस्त है वो शैतान हो जाता है। शैतान फिर उसको हर तरह से बुराई के रास्ते पर ही चलने का हुक्म देता चला जाता है। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको शैतान मरदूद से हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत 170। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून। और जब उन काफिरों से कहा जाता है जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसकी पैरवी करो, तो वो कहते हैं कि नहीं, बल्कि हम तो उसी रविश पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, अगरचे उनके बाप दादा कुछ ना कुछ अकल रखते हों और ना ही हिदायत याफ्ता हों। यानी कि उनके बाप दादा ना कुछ अकल रखते हों और ना ही हिदायत पर हों। तो यहाँ पे इस जगह पर ऐसे लोगों के बारे में बताया जा रहा है, फरमाया जा रहा है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अंधी तक़लीद करते हैं। यानी सिर्फ़ अपने बाप-दादा की इत्तिबा करते हैं और वो समझते हैं कि हमारे बाप-दादा ने जो भी कुछ किया है, वो बिल्कुल सही किया है, दुरुस्त किया है। बस हम तो अपने आबा-अज़दाद या बाप-दादा के जो रस्म-ए-रिवाज है, उसी को ही फ़ॉलो करेंगे, उसी को ही लेकर चलेंगे। तो इस तरह से जो लोग कहते हैं कि, और उस वक़्त भी इसी तरह से था ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन शरीयत लेकर आए और मुशरिकीन मक्का ने भी यही जवाब दिया और जितने भी यहूद थे उन्होंने भी यही सब कुछ जवाब दिया कि बस हम तो क्या है अपने बाप दादा के दीन की पैरवी करने वाले हैं और बस हम तो उसी पर चलने वाले हैं। हमें जो है ना आपके दीन की पैरवी नहीं करनी है। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह से जवाबात दिए थे। कहते थे कि हम आपके दीन की पैरवी नहीं करने वाले हैं। और जब उनसे कहा जाता था कि दीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे जब आपने नबूवत का दावा किया और सबको जो है दीन की बात पहुँचाई, तो उन सब ने क्या कहा कि हम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आबा व अजदाद की पैरवी करने वाले हैं। तो यहाँ पे सारे इंसानों से खिताब कहकर इबादत रब की दावत दी गई है और कहा जा रहा है कि जो भी कोई है, जिसने भी इस तरह से हिमाकत की है, कि जिसने भी ये कहा कि हम तो अपने आबा व अजदाद की पैरवी करेंगे, तो फिर दरअसल क्या है, उनको कैसे पता उनके आबा व अजदाद सही रास्ते पर हैं? कैसे पता तुमको ना? यानी कि अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, जब इस तरह के जो लोग होते हैं, जो आबा व अजदाद की पैरवी करते चले जाते हैं और उनकी आँखों पे पट्टी बंधी होती है आबा व अजदाद की इत्तिबा करने की, और उनसे कहा जाता है कि तुम अल्लाह की किताब पर ईमान ले आओ और इसकी इत्तिबा करो, तो वो जवाब देते हैं कि हम तो उसकी पैरवी करेंगे जो हमारे बाब आबा व अजदाद ने जो हमें दीन धर्म दिया है। और सामने जो किताब है, सामने जो हक मौजूद है, वाज़ेह है, अहकामात वाज़ेह है, हक वाज़ेह है, सब कुछ वाज़ेह, सब कुछ क्लियर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इनकार कर देते हैं। क्यों? किस बिना पर? कहते हैं हम तो अपने आबा व अजदाद की बस पैरवी करेंगे। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे आबा व अजदाद सही रास्ते पर हैं? हो सकता है तुम्हारे आबा अजदाद या बाप दादा बेरास्ते पे हों और उनका गुमराही के रास्ते पे हों, तो तुम क्यों नहीं अकल से काम लेते? तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे आबा-अजदाद सही रास्ते पे हैं? तुम्हें कोई इस चीज़ का सर्टिफ़िकेट मिला है? जिनका सर्टिफ़िकेट सामने है, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ, उनके रास्ते की पैरवी करो, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। और बिल्कुल इसी तरह से उस वक़्त में भी मुशरिकीन मक्का भी इसी तरह से एतराज़ात करते थे, कहते थे हम अपने आबा व अजदाद की पैरवी करेंगे, और यहूद और नसारा ने भी इसी तरह से जवाबात दिए। और ठीक इसी तरह से आज हमारे माशरे का भी यही हाल है कि ह हक सामने आ जाता है। कुरान के अहकामात सामने आने के बाद भी और हदीसों से सामने बिल्कुल बात वाज़ेह होने के बाद भी इंसान जो है बिदात में, शिर्क में और आबा व अजदाद की ऐसी अंधी पैरवी में मुब्तला होता है कि हर बार उनके भी यही जवाब होते हैं कि हम तो अपने आबा व अजदाद यानी अपने बाप-दादा या हमारे ख़ानदान या हमारे कुनबे कबीले से जो हमारी रस्में होती चली आ रही हैं, उसको हम कैसे छोड़ दें? तो हमारे ख़ानदान, कुनबा, कबीला या हमारा माशरा हमें क्या कहेगा? इस डर से वो उनकी उन बातों की भी इत्तिबा करते हैं जो कहीं से भी दीन से कहीं कुछ साबित नहीं है। बिदअत को वो सरअंजाम देते हैं, जैसे कि जो रजब चल रहा है ना, तो इस तरह से कुछ खानदान ऐसे उनके रजब के कूड़े वगैरह भी होते हैं और पूरे में खिलाया जाता है, बाँटा जाता है। हालाँकि ऐसा काम ये बिदअत है, इसको करने से तो और गुनाह ही में इंसान लदेगा, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे खानदान से होता चला आ रहा है तो हमें करना है। इस तरह से तमाम और भी काम हैं कि वो करते चले आते हैं, खानदान में जो होता चला आ रहा है बस हम ही को करना है ना। तो जो हमारे खानदान बाप-दादा से होता चला आ रहा है बस हमें इसी को करना है। तो इसी तरह से आज भी अहले बिदअत को समझाया जाता है, तो उन बिदअत दीन में कोई असल नहीं है, तो वो यही जवाब देंगे कि ये तो हमारी क्या रस्में हैं, जो हमारे ख़ानदान से चली आ रही हैं। हालाँकि आबा व अजदाद भी उनके जो दीन से दूर हो सकता है, या उनके जो है जाहिलियत की वजह से या हिदायत से महरूमी की वजह से हो सकता है उनके बाप-दादा ने भी गलत चीज़ों को अपना लिया है, लेकिन कुछ
लोग होते हैं कि बस अपने आबा व अजदाद की अंधी तकलीद करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में ये आयत नाज़िल है कि हो सकता है कि तुम्हारे बाप-दादा या ख़ानदान वाले ना गलत तरीके पर हैं, तो तुम्हें इत्तिबा किसकी करनी है? तुम्हें पैरवी किसकी करनी है ना? किताबुल्लाह और सुन्नत की, जो तुम्हें कभी गुमराह नहीं होने देंगी। तुम्हें तुम्हारा जो आबा व अजदाद है, अगर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की इत्तिबा करने वाले हैं तो ठीक है करो, लेकिन अगर वो नहीं है, उससे हट कर है तो फिर क्या है? हिदायत से दूर है वो अक्ल वाले नहीं हो सकते हैं। वो अकल वाले अगर होते तो वो कुरान और सुन्नत की इत्तिबा करने वाले होते। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि बाप-दादा की इत्तिबा करना कोई सवाब का काम नहीं है, कोई कामयाबी का काम नहीं है। और अगर बाप-दादा अगर खुदा ना ख़ास्ता अगर गलत रास्ते पर हैं तो बिल्कुल ही उनकी जो है तुम तक़लीद छोड़ दो, उनकी इत्तिबा ना करो। बल्कि इंसान को एक मुसलमान को किसकी इत्तिबा करना है? कुरान की, किताबुल्लाह की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की और सुन्नत की। यानी कि हदीस क्या है? सुन्नत है और किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद है। तो इसकी इत्तिबा करने से कभी भी इंसान गुमराह नहीं होगा। हाँ, आबा व अजदाद कहीं न कहीं हो सकता है इंसान के गलत रास्ते पे हों, हिदायत से दूर हों, तो बस इसलिए वो खतरा है, वो खसारा हो सकता है। लेकिन एक इंसान, एक मुसलमान जब कुरान और सुन्नत की इत्तिबा करता है, तो वो कभी भी इंशाअल्लाह खसारे पे नहीं हो सकता है। तो ऐसे जो कुछ लोग थे, ऐसे ग्रुप्स थे, जो उस वक़्त भी थे और आज भी मौजूद हैं, जो बस आँखें बंद करके किताब से मुँह मोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आबा व अजदाद की पैरवी करते चले जाते हैं, तो उनके बारे में इस तरह की आयत है कि उनको चाहिए कि वो कुरान और सुन्नत से इत्तिबा करें, कुरान और सुन्नत की इत्तिबा करें, अपने आबा व अजदाद की अंधी तकलीद को वो छोड़ दें। क्योंकि हो नहीं सकता कि हो सकता ये भी कि उनके आबा व अजदाद, उनके बाप-दादा गलत रास्ते पे हों, गलत उनकी हिदायत नहीं हुई हो, तो वो किसी बेइल्मी की वजह से, लाइल्मी की वजह से, जाहिलियत की वजह से किसी बुरी रस्म में फँस गए हों और वो खुद फ़ौत हो गए हों और वो भी पछता रहे हों, हसरत का सबब उनके लिए हो रहा, लेकिन वो अब जो भी बुरी बुरी और बुराई जो उन्होंने रस्म ईजाद कर ली है, तो अब वो मना तो नहीं कर सकता है कि आके, लेकिन अब पीठ पीछे क्या हो रहा है, उनकी सारी नस्लें-नस्लें उनकी भी बुरी और ख़राब जो रस्म है, उसकी इत्तिबा करता चला जा रहा है ना? तो इसलिए इंसान गुमराह होता चला जाता है। तो सही दीन क्या है? इंसान कुरान और सुन्नत की इत्तिबा करे बस। आयत वमसलुल लज़ीना कफ़रू कमसलिल लज़ी यअकू बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला याक़िलून। कुफ़ार की मिसाल उन जानवरों की तरह है जो अपने चरवाहे की सिर्फ़ पुकार और आवाज़ ही सुनते हैं और समझते नहीं। वो बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं, उन्हें अक़ल ही नहीं है। यहाँ उन काफ़िरों की मिसाल है जो अंधी तक़लीद करते चले जाते हैं। यानी जैसे कि एक इंसान आँख बंद करके, पट्टी बाँध करके बस पीछे चलता चला जाता है। वो दाएँ-बाएँ, सच, हकीकत कुछ भी नहीं देखता है। क्या ख़तरात है, क्या हम सही रास्ते पे भी जा रहे हैं, बस हम चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तबारक तआला ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई है। इस आयत में ऐसे लोगों को एक जानवर की मिसाल दी गई है। जानवर कहा गया है कि जैसे ये जो कुफ़ार है, जो कुफ़्र करने वाले हैं, जिन्होंने भी अपने अपने आबा व अजदाद या बाप-दादा की अंधी तक़लीद की, तो वो उनकी मिसाल क्या है? जानवर की है, जानवरों की मानंद है। जैसे जब चरवाहा उनको पुकारता है, आवाज़ देता है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। एक जो जानवरों का जो एक पूरा रेवड़ होता है, जो झुंड होता है, वो अपने चरवाहे की बस आ तो समझ सकता है, या बस और कुछ भी उसको समझ में नहीं आता है। वो क्या उनको कह रहा है, खाना खाओगे, पानी पियोगे, घर चलोगे, ऐसा कुछ भी उसको समझ में नहीं आता है। कोई भी पुकार या आवाज़ या लैंग्वेज उनको कोई बात समझ में नहीं आती है। इसी तरह से ये काफ़िर लोग भी हैं। इनको भी हक़ बात समझ में नहीं आती है, हक़ बात इनको दिखाई नहीं देती है, हक़ बात इनको सुनाई नहीं देती है, अकल होते हुए भी बिल्कुल ये बदअक्ले होते हैं। तो जितने भी कुफ़्र करने वाले लोग हैं, जितने भी बिदअत करने वाले लोग हैं ना, अगर आप उनको हक़ बात बताएँगे कि आप बिदअत ना करें, ये जो बिदअत है, ये जो रस्म-रिवाज है आपके आबा व अजदाद की, इसको छोड़ दें, इसको ना करें, तो बस क्या है, वो कुछ सुनेंगे ही नहीं। कुछ मानेंगे ही नहीं आपकी बात और बस ऐसे हो जाएँगे जैसे बस क्या है, आपने कुछ कहा ही ना हो। इसी तरह से उनकी मिसाल अल्लाह तबारक तआला यहाँ पे लाए हैं कि कुफ़्र करने वालों की जो मिसाल है, जानवरों से उनकी तशबीह दी गई है। जैसे कि एक चरवाहा है ना, उसको पुकारे और वो आवाज़ को सुनते ही ना हो, और जैसे वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं और अकल ही नहीं रखते हैं। यानी एक जो कुफ़्र करने वाले लोग हैं, अगर आप उनको हक़ की बात बताएँ, हक़ की दावत दें और हक़ की तरफ बुलाएँ, तो वो उनके सामने जो हक़ सामने मौजूद है, लेकिन वो अपनी आँखों से वो देख नहीं सकते हैं। हक़ हक़ होते हुए वो सुन नहीं सकते। सच होते हुए वो उसको मानते नहीं, सच होते हुए वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। यानी कान है, लेकिन वो उन कानों से सच बात नहीं सुनते। आँखें हैं, लेकिन उन आँखों से वो सच बात देख नहीं सकते। अकल है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, मानते नहीं हैं। तो ऐसे शख्स की मिसाल यहाँ चरवाहे से दी गई, जानवरों से दी गई है, एक जानवरों से तशबीह दी गई है। ऐसे लोग ये जानवर की मानंद होते हैं। 4 पैरों वाले जो चौपाए होते हैं, उनसे उनकी तशबीह दी गई है।
जो उनका चरवाहा चाहे जिधर भी बुलाए, पुकारे, आवाज़ दे, लेकिन वो उन जानवरों को समझ में कुछ भी नहीं आता कि ये मेरा चरवाहा हमसे क्या कह रहा है ना। इसी तरह से ये जानवरों की तरह होते हैं ऐसे लोग जो अपने बाप-दादा की अंधी तकलीद करते चले जाते हैं। इसी तरह से हमारे माशरे में भी होता है ना कि हमारे यहाँ एक माशरे में आज रस्म-रिवाज इतनी ज़्यादा कल्चर मौजूद है, बस हमारे ख़ानदान में जो होता चला आ रहा है हमको तो वही करना है। हमारे ख़ानदान में रत जगह, शादी हुई तो बस हमें क्या करना है, मांझा, मांझा तो ज़रूर करना है। अब हम सबका खा कर आए तो हमें दावत तो देनी देनी है मांझों की। मांझा नहीं करेंगे तो हमारे ख़ानदान वाले, कुनबे, कबीले, मोहल्ले, पड़ोसी क्या कहेंगे? फिर दूसरी स्टेप क्या होता है, रात भर जगह। गुलगुले पक रहे हैं, गुलगुले भरे जा रहे हैं, मस्जिदों में रखे जा रहे हैं, तमाम तरह की पता नहीं क्या-क्या रस्म बिदअत इतनी मौजूद है और वो अगर कहते हैं ना करें, तो कहते हैं हमारे आबा व अजदाद से चला आ रहा है रस्म-रिवाज, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? और ये होगा और वो होगा। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं ऐसे लोग जो कुफ्र पर ही अड़े रहते हैं, उनकी जो मिसाल है वो जानवरों जैसी है। जब हक आपके सामने आ गया, तो आपको उसको नहीं मानना है। जो एक जो मोमिन है ना, उसके सामने जब हक बात वाज़ेह हो जाती है, तो फिर वो अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ देता है, उसको जो है अपनी ज़िंदगी से हटा देता है, तो ये मोमिन है। लेकिन एक जो काफ़िर है, जो कुफ़्र करने वाला है, जो कुफ़्र पर अड़ा है, उसके सामने चाहे जैसी भी बात आप ले आएँ, हक बात ले आएँ, हक बात आने के बाद, सच बात आने के बाद भी वो अपने कुफ़्र पर ही वो अड़ा रहेगा, तो ऐसे शख्स को कहा जा रहा है, वो जानवर है। आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन त्वय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। ए ईमान वालों, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें दे रखी हैं, उनमें से खाओ, पियो और अल्लाह ताला का शुक्र करो, अगर तुम ख़ास उसी की इबादत करते हो। अल्लाह तबारक तआला यहाँ पर खाने-पीने की बात फिर लाए हैं और खिताब है ईमान वालों से। यहाँ खिताब है ईमान वालों से, तो ईमान वालों को चाहिए कि वो खाएँ-पिएँ तो हलाल खाएँ और तय्यब खाएँ और यहाँ अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि जितने भी ईमान वाले हैं, वो सारे के सारे कैसे खाएँ? हलाल खाएँ और तय्यब खाएँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो भी ईमान वाले हो तुम लोग, मिन तय्यिबाति कुलू मिन तय्यिबाति, पियो और खाओ, खाओ और पियो हलाल चीज़ें। तो यहाँ अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि तय्यब और हलाल खाने का जो हुक्म दिया है इस आयत में, अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर अहले ईमान को हलाल और पाकीज़ा रोज़ी खाने और कमाने का भी हुक्म दिया है, क्योंकि इसके बगैर कोई दुआ और इबादत कबूल ही नहीं होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, बेशक अल्लाह ताला तय्यब यानी पाक है और तय्यब के सिवा कुछ कबूल नहीं फरमाता है। उसने ईमान वालों को इसी चीज़ का भी हुक्म दिया है, जिसका उसने अपने रसूलों को हुक्म दिया है। चुनांचे फरमाया, या अय्युहर रसूल मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहन इन्नी बिमा तअमलून अलीम। सूरह मोमिनून आयत 51। ए रसूलो, पाकीज़ा चीज़ें में से खाओ और नेक अमल करो, यकीनन मैं इसे जो तुम में करते हो खूब जानने वाला हूँ। और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। सूरह बकरा आयत 72 में जिस तरह यहाँ पे फरमाया, ए लोगों जो ईमान लाए हो, उन पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता फरमाई हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स का ज़िक्र फरमाया जो लंबा सफ़र करता है, बिखरे हुए बालों वाला है, गर्द गुबार से भरा हुआ था, आसमान की तरफ हाथ फैलाकर कहता है, ए मेरे रब, ए मेरे रब। और सूरत हाल ये है कि उसका खाना भी हराम है, उसका पीना भी हराम है, उसका लिबास भी हराम है और इसे जो ग़िज़ा दी गई है वो भी हराम थी। भला उसकी दुआ कैसे कबूल की जाएगी? तो ऐसा जो शख्स जिसने हराम खाया, हराम इस्तेमाल किया और हराम पिया और हराम का पहना, तो ऐसे शख्स की कोई दुआ नहीं कबूल है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएँ कबूल हों और हमारे अल्लाह ताला इबादत कबूल करे, तो इसके लिए हर ईमान वाले को चाहिए कि वो हलाल खाए। हलाल तरीके से कमाया हुआ वो जो कमाई का भी जो ज़राए हैं, वो भी हलाल हो, हराम की नहीं हो। तो इस तरीके से जब हम चाहे अल्लाह ताला हमारी दुआएँ कबूल करे, हमारी इबादत कबूल करे, तो हमें जो तरीके अपनाने हैं वो हलाल के हों। यानी कि मिसाल के तौर पे हम खा तो रहे हैं हलाल चीज़ें, अल्लाह की तैयब चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए नाज़िल फ़रमाया है, हम मटन, चिकन वग़ैरह खा रहे हैं, हलाल है, लेकिन हमने उसको अर्न कैसे किया? उसको हमने कमाया कैसे? किस तरीके से? चोरी के पैसे से, डकैती के पैसे से, तो फिर वो हलाल चीज़ भी क्या हो जाएगी? वो हराम हो जाएगी। तो दोनों शर्त ज़रूरी है। जो तरीका है, जिस रिज़्क से हमें कमाना है, जिन पैसों से हमें उसको लाना है, वो हलाल पैसे हों, हराम के पैसे बिल्कुल नहीं हों। और फिर जो चीज़ आए वो भी क्या हो? हलाल हो, तय्यब हो। और फिर साथ ही साथ अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, वश्कुरु लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। और खाओ और पियो और अल्लाह का शुक्र अदा करो और तुम खास उसी की इबादत करते हो। अल्लाह तबारक तआला का शुक्र करने से बहुत ज़्यादा नेमतों में इज़ाफ़ा होता है। जो अल्लाह ने हलाल की है और उसका शुक्र अदा करने पर ताईद भी अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाई है। इससे एक तो ये मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ें ही पाक और तैयब हैं। हराम करदा अशिया पाक नहीं है, चाहे वो नफ्स को कितनी ही मरगूब हों। जैसे अहले यूरोप को जो खिंज़ीर का गोश्त है ना, बड़ा मरगूब है। दूसरा ये कि बुतों के नाम पर जो मंसूब जानवर भी होते हैं, मुशरिकीन अपने पर हराम कर लेते हैं। इसी तरह से मुशरिकीन का ये गलत अमल भी बिल्कुल भी क्या है? सही नहीं है, गलत है, हराम है।
इसी तरह से अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि खाना है, पीना है, हर तरह से वो खाओ पियो, लेकिन क्या है तैयब हो, और जो हमने रिज़्क दिया है तुमको उसमें से तुम खाओ पियो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह का शुक्र भी क्या है? इबादत है। अल्लाह का शुक्र इंसान जितना करता है, अल्लाह उतना ही उसको और ज़्यादा देता है, नेमतों में इज़ाफ़ा होता चला जाता है और अल्लाह खुश भी होते हैं बंदों से, जब अल्लाह के बंदे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आयत 173, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंज़ीरि वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाहि फमन इत्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। तुम पर मुर्दार और बहा हुआ खून और सूअर का गोश्त और हर वो चीज जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया हो, वो हराम है। फिर जो मजबूर हो जाए और वो हद से बढ़ने वाला और ज्यादती करने वाला ना हो और उनके खाने में कोई गुनाह नहीं, तो अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला और बड़ा मेहरबान है। यहाँ अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, यहाँ पर खाने पीने से रिलेटेड आपसे बताया था ना, तो यहाँ पे क्या क्या हमारे लिए हलाल है और क्या हराम है सब बताया गया है। तो इस आयत से पता चलता है 4 चीज़ें जो हैं हमारे लिए वो क्या है? हराम है। पहला है अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, तुम पर हराम किया गया है मुर्दार, मरा हुआ जानवर। तो मरा हुआ जानवर कैसा हो? तो मरा हुआ जानवर ऐसा हो जो झटका लग के मरते हैं ना, गला घोंट के मार देते हैं, या जैसे सिख लोग भी जो मारते हैं तो एकदम से वो गर्दन तो काटते हैं लेकिन बहुत तेज़ी से काट देते हैं और वो धीरे-धीरे जैसे शरीयत के तरीके से जो ज़िबा होता है उस तरह से वो सिख लोग नहीं करते हैं। तो इस्लामी जो शरीयत का तरीका, हमें जो ज़िबा का तरीका है ना वो हमें अपनाना है। उसके अलावा जो भी तरीके हैं वो सारे क्या है? मुर्दार हो जाएँगे, मरा हुआ हो जाएगा जानवर। कुछ लोग जो चिकन को ना ऐसे गला गर्दन तोड़ देते हैं और बस उनको उसी में टेस्ट मिलता है, झटके का जिसे कहते हैं। और फिर या कोई भी जानवर है ऊपर से गिर कर मर गया या चोट खा के मर गया, और मर गया तो फिर वो मरा ही हुआ हो गया। तो फिर ऐसा जानवर वो हराम है। हालाँकि वो बकरी तो हलाल अल्लाह ताला ने की है ना, और ऊँट भी अल्लाह ताला ने हलाल किया, लेकिन अगर वो चोट लग के मर गया, ख़त्म हो गया, तो जो मर गया उसकी मौत वाक़ई होगी तो फिर वो अब वो हराम है। ऐसा जानवर अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है। मरा हुआ जानवर, मुर्दार जानवर हराम है। और इसी तरह से जो भी वो जानवर जो शरीयत के तरीके से नहीं ज़िबा किया गया, दूसरे तरीकों से जो ज़िबा किया गया, फिर वो भी वो मुर्दार में ही आ जाएगा, वो भी हराम है। और वो खून, बहा हुआ जो खून होता है, तो बहा हुआ जो खून अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम पर हराम किया गया बहा हुआ खून। यानी कि जब जानवर ज़िबा किया जाता है तो उसका जो खून बहता है वो हम पर हराम है। सारे मुसलमानों के लिए वो हराम है। तो वो खून नहीं खा सकता है इंसान, ना वो इस्तेमाल कर सकता है। यानी ज़िबा के वक़्त जो खून निकलता और बहता है तो वो खून क्या है? हराम है। और जो लेकिन गोश्त के साथ खून लगा रहता है वो हलाल है। तो बाज़ वक़्त कहते हैं ना कि ये जो गोश्त है या जो कीमा है इसमें भी तो खून है, अगर आप पूरा का पूरा धो भी डालेंगे तब भी उसमें से खून निकलता रहता है, तो वो अल्लाह ताला ने उसको हलाल करा है। लेकिन जब जानवर ज़िबा हुआ, ज़िबा के वक़्त वो खून बहता है, तो वो खून हराम है। तो ज़िबा के वक़्त जो निकला हुआ खून है वो अल्लाह ताला ने हराम कर रखा है। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए 2 मुर्दार भी हलाल किए हैं और 2 खून भी हलाल किए हैं। 2 मुर्दार टिड्डी और मछली अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल की है। तो 2 मुर्दार यानी कि मरी हुई मछली और मरी हुई टिड्डी खा सकते हैं, और 2 खून यानी कि एक पहला है कलेजी और दूसरा है तिल्ली, इसको भी हम खा सकते हैं। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे लिए सूअर का गोश्त भी क्या है? हराम है। तो सूअर के गोश्त हराम है, और उससे बना हुआ जितने भी उसकी पिग फैट से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं, क्रीम और साबुन वगैरह, ये भी सब हम सब के लिए हराम है। तो हमें अच्छी तरह से तहकीक कर लेना चाहिए कि हम जो क्रीम, शैम्पू या सोप या हैंड वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें कहीं पिग फैट तो नहीं है। तो पिग का जो गोश्त है वो भी हराम है, और उससे तमाम सूअर की जो बॉडी से बनी हुई तमाम चीज़ें वो सब क्या है? हराम है। यानी उससे खाल से बनी हुई चीज़ है, उसके बालों से कोई बनी हुई चीज़ है, या उसके पिग फैट से बनी हुई कोई चीज़ है, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी क्या है? हराम है। तो सूअर क्या दरअसल है? वो बेगैरती में बदतरीन जानवर है। अल्लाह ताला ने इसे हमारे लिए हराम करार दिया है। वमा उहिल्ला, और वो जानवर या कोई और चीज़ जिसे अल्लाह के यानी कि अल्लाह के सिवा पुकारा जाए, यानी कि गैरुल्लाह के नाम पर पुकारा जाए, उसे भी इससे ये मुराद है। वो जानवर हैं जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबह किए जाएँ। जैसे जिस तरह से मुशरिकीन अरब लात, मनात, उज़्ज़ा, यानी कि उनके देवी-देवताओं उन्होंने जो है कर रखे थे, उनके नाम थे ये। उनके नामों पर वो ज़िबह करते थे जानवरों को, या आग के नाम पर मजूसी करते थे। तो और इसी में वो जानवर भी आ जाएँगे जो
آج کل کے جو انلٹریٹ مسلمان یا جاہل مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت میں یا محبت میں ان کی خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور ان سے ڈر کے بھی کرتے ہیں یا امید رکھتے ہوئے کرتے ہیں، یا قبروں پر یا آستانوں پر ذبح کرتے ہوئے کرتے ہیں، یا جیسے مجاوروں کو یا بزرگوں کی نیاز کے نام پر بھی لوگ اس طرح سے قربانی کے جانور دیتے ہیں۔ جیسے بہت سے بزرگوں کی قبروں پر کے بورڈ بھی لکھا ہوتا ہے، مثلا جیسے داتا صاحب کی نیاز کے لیے بکریاں یہاں جمع کرائیے نا، اس طرح سے بھی لکھا رہتا ہے۔ ان جانوروں کو چاہے ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لے لے، لیکن ذبح تو کس کے نام پر وہ ہو رہا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر ہو رہا ہے نا، اس کی نیت بھی کیا ہے؟ ملاوٹ ہو گئی ہے۔ تو حالانکہ اس نے بسم اللہ کیا، لیکن اس کی نیت کیا ہے کہ ہم فلاں فلاں آستانے پر ہم ذبح کریں، تو پھر وہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ مقصد اس کے رضا الہی نہیں، رضا اہل قبور ہے، یعنی کہ قبر والے کی رضا اس کی مقصد ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کے علاوہ جو اشیاء بھی غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز اور چڑھاوے کی ہوگی، اور وہ بھی حرام ہوگی، جیسے قبروں پر لے جا کر انسان وہاں پر خرید فروخت کرے اور تبرک خریدے، اور وہاں پہ مسکینوں غریبوں اور لنگر لٹائے یا ڈیگی لٹائے یا مٹھائیاں بانٹے، یہ تمام طرح کی جو چیزیں ہیں یہ سب کچھ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس طرح سے عرس میلے ٹھیلے وہاں پہ بانٹنا اور ڈیگے لٹانا، تبرک لٹانا، نظر نیاز کرنا، یہ سب بھی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر جو پکارا گیا ہے، یہ سب کچھ حرام ہے۔ بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں نا اجمیر صاحب کا، وہاں سے عرس وہاں پہ تبرک لاتے بانٹتے ہیں، اور تمام طرح سے کوئی بھی مزار پہ وہاں کا عرس کا تبرک بانٹ رہے، تو یہ سب کیا اس طرح کا حرام ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، انسان خود تو نہیں جاتا لیکن لا کے کوئی دیتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر جو جو کھانا ہے پینا ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، چاہے وہ لنگر ہو، چاہے وہ گوشت ہو، چاہے وہ تبرک ہو، چاہے وہ کوئی مٹھائی ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کھانے پینے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حرام کر دی ہے غیر اللہ کے نام کی۔ اور ایک ٹرم ایک کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ جب انسان جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام لیا گیا ہو تو وہ حرام ہے، پھر اگر لیکن کوئی ایک مجبور ہو گیا انسان، اب اگر انسان کوئی جنگل میں ویران میں پھنس گیا ہے اور اس کو کوئی بھی اب یہ امید نہیں لگتی کہ اب ہم مر ہی جائیں گے، اگر ہمارے سامنے مرا ہوا جانور ہے تو ہم اس کو کیسے کھا لینا، ہم مرنا پسند کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹرم کنڈیشن دی ہے کہ ایسی سچویشن میں ایسی کنڈیشن میں پھر اتنا کھا لے کہ اس کی زندگی بچ جائے، پیٹ بھر کے تب بھی نہیں کھانا ہے، ایک دو لقمے کھا لے مرا ہوا جانور بھی، ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے کہ ایسا کوئی شخص کوئی جنگل میں بھٹک گیا ہے، اپنے اسے چھوٹ گیا ہے، یا کوئی قید کر لیا گیا ہے، یا کوئی گم ہو گیا ہے، یا کہیں پھنس گیا ہے، یا کوئی ریگستان میں بھٹک گیا، یا کوئی سمندر میں کھو گیا ہے، تو کہیں کوئی ٹاپو پہ چلا گیا، آپ کوئی حلال چیز نہیں مل رہی ہے تو اس کو حرام چیز سامنے ہی نظر آ رہی، تو پھر اتنا لے لے کہ اس کی بس زندگی بچ جائے۔ اس کنڈیشن میں، اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے اس حرام چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پہ نا بہت رحم کرنے والے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ بہت اپنی جان دے دے اور وہ اپنی جان بچائے نہ، اور اپنی جان اس لیے دے دے کہ وہ حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو حرام چیز کو بھی اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ سے معافی بھی مانگے، جب اس کے حالات سدھر جائیں، اس بری کنڈیشن سے وہ باہر آ جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ اپنے جو گناہوں کی معافی مانگے اور پھر اس کو چھوڑ بھی دے ہمیشہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ آیت 174، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمون الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ بے شک جو لوگ کتاب یعنی تورات کی ان آیتوں کو جو اللہ نے نازل فرمائی چھپاتے ہیں، اس کے بدلے حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ سوائے اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے کچھ نہیں کرتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کے لیے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ایسے شخص جن کا مقصد دنیاوی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے سارے کام کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی چھپائی، اس سے مراد یہاں پہ بنی اسرائیل بھی ہیں، اور وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب آیات کو بیچا اور دنیاوی قیمت لے لی، اللہ کی آیات کو بیچا اور دنیا کی قلیل قیمت لے لی، تو پھر کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے، جو بھی انہوں نے کھایا بدلے میں اللہ کی آیات کو بیچ کے، جو وہ انہوں نے کھایا تو وہ انہوں نے جو اپنے پیٹوں میں بھرا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ تو جہنم کی آگ ہے، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو وہ جہنم کے قریب کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نہ بات کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ ایسے شخص جنہوں نے اللہ کی آیات کو چھپایا، جو بھی اللہ نے نازل فرمایا تھا، اور انہوں نے ان آیات کو، حق بات کو بیچا اور دنیا کی قلیل قیمت لے لی، دنیا کی جو فائدے حاصل کر لیے اور حق بات کو انہوں نے بیچ دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب ہے، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت 175،
उलाइका लज़ीना इश्तरउ दलालत बिल हुदा वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा फमा अस्बरहुम अलन नार। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी है और मग़फ़िरत के बदले अज़ाब। किस चीज़ ने उन्हें दोज़ख की आग पर सब्र करने वाला बना दिया है? सवालिया अंदाज है, यानी कि जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, जिन्होंने जो है गुमराही को खरीदा बदले हिदायत के और अज़ाब को खरीदा बदले मग़फ़िरत के, तो ऐसे लोग कैसे हैं और कैसे सब्र है इनके ऊपर ना, कि जिन्होंने अल्लाह की आयत को जो है छुपाया और उसके बदले दुनिया की कलील थोड़ी-सी छोटी-सी कीमत ले ली और उन्होंने जो भी खाया पिया अपने पेटों में आग भरी है। और ऐसे लोग क्या हैं, हैरत होती है इनके ऊपर कि उन्होंने बदले हिदायत के गुमराही खरीद ली, बदले जो है मग़फ़िरत के अज़ाब ले लिया। तो बस कैसा सब्र है उनके उनके जो सब्र है, किस चीज़ ने उन्हें दोज़ख की आग पर सब्र करने वाला बना दिया है। आयत 176 ज़ालिका बिअन्नुल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल-हक़्क़ि व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। ये इस वजह से कि अल्लाह ने किताब हक़ के साथ नाज़िल फ़रमाई है और बेशक जिन्होंने किताब में इख्तिलाफ़ डाला वो मुख़ालिफ़त में हक़ से बहुत दूर जा पड़े हैं। आयत 177 लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिहि ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबीली वस्साइलीन व फ़ी रिक़ाब व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता वल मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बास उलाइका लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। नेकी सिर्फ ये ही नहीं है कि तुम अपने मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो, बल्कि असल नेकी तो ये है कि कोई शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाए और अल्लाह की मोहब्बत में माल क़राबतदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों पर और मांगने वालों पर और ग़ुलामों की गर्दनों को छुड़ाने में खर्च करे और नमाज कायम करे और ज़कात दे। और जब कोई वादा करे तो अपना वादा पूरा करने वाला हो और सख्ती यानी तंगी में, मुसीबत में यानी बीमारी में, जंग की शिद्दत में सब्र करने वाला हो। यही लोग सच्चे हैं और यही लोग परहेजगार हैं। तो इस आयत को आयते बिर कहते हैं। इस आयत को आयते बिर कहा जाता है क्योंकि इसमें नेकी का एक जामे तसव्वुर दिया गया है, जो ये है जो ये ही जानना चाहता है कि नेकी को कौन से कामों में है, यानी कि नेकी के कौन-कौन से काम हैं, तो ये आयत वो पढ़ ले। सबसे पहले अकीदा दुरुस्त करने की ज़रूरत है, फिर हुकूकुल इबाद और फिर हुकूक अल्लाह की अदायगी पर बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ज़िक्र करके यहाँ पे लाए हैं कि सबसे पहले क्या है, अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू, नेकी ये नहीं कि तुम फेर लो अपने चेहरों को मशरिक या मगरिब की तरफ। तो नेकी तो दरअसल ये है कि जो इसमें तमाम चीज़ें बताई गई हैं, तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक तआला ने इसमें बताई हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मशरिक या मगरिब की तरफ रुख कर लेना बज़ाते खुद कोई नेकी नहीं है, बल्कि नेकी तो सिर्फ ये है कि इंसान मरकज़ियत और इज्तिमाइयत के हुसूल का एक तरीका है। असल नेकी तो उन अकायद पर ईमान रखना है जो अल्लाह ने बयान फरमाई है और उन आमाल को, अखलाक को अपनाना है जिसकी ताकीद उसने खुद फरमाई है। तो यहाँ नेकी के काम करने को अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है, सबसे पहला काम क्या करे इंसान कि वो ईमान लाए अल्लाह पर, एक अल्लाह पर डट जाए, यानी कि एक अल्लाह की इबादत पर वो डटा रहे। तौहीद मकसद इससे मुराद है मन आमना बिल्लाह, जो कोई ईमान लाया बिल्लाही अल्लाह पर, ईमान लाए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर, किसी को भी अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराए, वल यौमिल आखिर, तो आखिरत के दिन पर ईमान लाए और फरिश्तों पर ईमान लाए और किताब पर ईमान लाए और नबियों पर ईमान लाए और अल्लाह ने जो उसको माल दिया है ना, यानी माल की मोहब्बत के बावजूद वो उसको खर्च करे, है ना। माल की मोहब्बत कब होती है इंसान को? सबसे ज़्यादा उसको जब उसकी ज़रूरत होती है। एक एक एज ऐसी आती है इंसान की, एक उम्र ऐसी आती है जब उसको माल से मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। तो माल की मोहब्बत कब ख़त्म हो जाती है? जब इंसान बीमार हो जाता है या बूढ़ा हो जाता है, उसको अपने माल से मोहब्बत फिर नहीं रहती है। लेकिन एक जवान जहान इंसान, उसको जब माल से मोहब्बत होती है, उसको खुद भी ज़रूरत होती है, उस माल की मोहब्बत के बावजूद भी वो खर्च करे, किस पर? सबसे पहला यहाँ पे आया है कराबतदारों पर, रिश्तेदारों पर खर्च करना है। रिश्तेदारों पर खर्च करने के 2 फ़ायदे हैं, पहला तो इंसान सिला रहमी करता है, दूसरा फिर वो अल्लाह की राह में सदक़ात देता है। तो इसीलिए सबसे पहला दिया गया है यहाँ पे कराबतदार, यानी कि सगे भाई-बहन या शौहर के सगे भाई-बहनों में खर्च करना और अपने ससुराली ख़ानदान या माँ-बाप के रिश्तेदार वग़ैरह में भी खर्च करना चाहिए, अगर वो गरीब हैं, वो ज़रूरतमंद हैं। फिर यतीमों को खर्च करना है, फिर मिस्कीनों पर खर्च करना है, फिर मुसाफिरों पर खर्च करना है, फिर जो भी आपसे माँगे या दरियाफ़्त के लिए सवाल करें, उनको देना है। फिर जो गुलाम होते हैं, उनको उनको आज़ाद कराना है। आज तो हम ये गुलामियत का दस्तूर नहीं रहा है, लेकिन कुछ जो
बेकसूर मुसलमान होते हैं उनको कैद कर लिया जाता है, बुरे-बुरे झूठे इल्ज़ाम में ना जो जेल में उनको कैद कर लिया जाता है। तो ऐसे कोई शख्स हो, कोई मुसलमान हो तो हो सकता है तो उसको फिर ज़मानत करा दे, उसको छुड़ा दे और नमाज़ की पाबंदी करें और ज़कात की अदायगी करें और जब वायदा करे तब उसको पूरा भी करे। और तंगदस्ती और दुःख की हालत में भी क्या है, इंसान तंगदस्ती और दुःख और दर्द और लड़ाई के वक़्त भी इंसान क्या करे, इन तीनों जगह पर क्या करना है इंसान को, सब्र करना है। सब्र, यही जो वो लोग हैं जो सच्चे हैं और परहेज़गार हैं ना। इस आयत में मुत्तकीन के अलामात बताई गई है, जो तकवा वाले हैं वही कामयाब होने वाले हैं। और यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला ने यतीम जो छोटे होते हैं, यानी कि हर एक को हम यतीम समझ लेते हैं, वो यतीम नहीं होते हैं। यतीम से मुराद वो जो बालिग ना हो, जब बच्चा बालिग हो जाए और वो कमा रहा है, खा रहा है, तो फिर वो यतीम की कैटेगरी में नहीं आता है। आज हर कोई ये दावा करता है ना कि हम यतीम हैं, शादी हो गई तब भी वो यतीम बना, नहीं। जो बच्चा छोटा है और उसकी परवरिश करने वाला कोई नहीं है, माँ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर बाप नहीं रहा उसका, बच्चा बालिग नहीं है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो फिर वो यतीम की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पे अल्लाह तबारक तआला ने कराबतदारों का ज़िक्र किया, फिर यतीमों का ज़िक्र किया। यतीम वो होता है जो बालिग नहीं है और उसका ज़रिया आमदनी कुछ भी ना हो, तो फिर ऐसे लोगों को देना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए। फिर मिस्कीनों को खर्च करना है, मोहताजों को करना है और वब्नि सबील यानी कि मुसाफिरों पे खर्च करना है। अब इंसान मुसाफिर जो होते हैं तो वो कभी-कभी परेशानियों में भी होते हैं, या उनको जो है मदद कर दे इंसान, या जो है खाना खिला दे या उनकी दावत कर दे, तो ये सभी क्या है, अल्लाह की राह पे खर्च करना है। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है चीज़ें। तो ये सारे के सारे बताया गया है इस आयत के अंदर, इसीलिए इस आयत को आयत बिर कहते हैं। ये आयत बिर के नाम से ये आयत जानी जाती है। आयत 178, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीही शैउन फ़इत्तिबाउन बिल मअरूफ़ि व अदाउन इलैहि बिइहसान ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमह फमन इअ्तदा बअद ज़ालिका फ़लहु अज़ाबुन अलीम। ए ईमान वालों, तुम पर मकतूलों का किसास लेना फ़र्ज़ कर दिया गया है। आज़ाद, आज़ाद के बदले ग़ुलाम, ग़ुलाम के बदले औरत, औरत के बदले हाँ, जिस किसी को उसके भाई की तरफ से कुछ माफ़ी दे दी जाए, तो इसे भलाई की इत्तिबा करनी चाहिए और आसानी के साथ दियत अदा करनी चाहिए। तुम्हारे रब की तरफ से ये तख़फ़ीफ़ है और रहमत है। इसके बाद भी जो सरकशी करे उसे दर्दनाक अज़ाब होगा। तो यहाँ उस दस्तूर के बारे में बताया गया है, ये दरअसल ज़माने जाहिलियत में कोई एक नज़म और कानून नहीं था, इसलिए ज़ोरावर कबीला, जो कमज़ोर कबीला यानी ग्रुप जो होते थे, जिस तरह चाहते थे ज़ुल्म और वो ज़ोर करके उनको ख़त्म करते थे, मार देते थे, कत्ल कर देते थे। एक ज़ुल्म की शक्ल ये भी थी कि किसी ताकतवर कबीले का कोई मर्द कत्ल हो जाता तो वो सिर्फ़ कातिल को कत्ल करने के बजाय कातिल के पूरे कबीले या मर्दों को भी, कई एक मर्दों को कत्ल करते। बल्कि बाज़ औक़ात पूरे कबीले को ख़त्म कर देते, तहस-नहस कर देते और औरत के बदले मर्द को, गुलाम के बदले आज़ाद को कत्ल कर देते। तो यानी कि एक जैसे किसी को कत्ल किया गया, वो पूरे-पूरे कबीले को ही तहस-नहस कर देते। तो अल्लाह ताला ने इस फ़र्क और इम्तियाज़ को ख़त्म करते हुए फ़रमाया है, जो कातिल होगा, क़िसास के बदले में उसी को कत्ल किया जाएगा। कातिल आज़ाद है तो बदले में वही आज़ाद, गुलाम है तो बदले गुलाम, और औरत है तो बदले में एक वही औरत कत्ल की जाएगी। ना कि गुलाम की जगह आज़ाद और औरत की जगह मर्द, या मर्द के बदले में कोई और मर्द। इसका ये मतलब भी नहीं है कि मर्द और अगर औरत को कत्ल कर दे तो क़िसास में कोई औरत कत्ल की जाएगी, या औरत मर्द को कत्ल कर दे तो किसी मर्द को कत्ल किया जाए। यानी जिसने कत्ल किया है बदले में उसको कत्ल किया जाएगा। तो जिसने भी कत्ल किया है, यानी कि गुलाम ने किया है तो बदले में गुलाम कत्ल किया जाएगा, अगर औरत ने कत्ल किया तो बदले में औरत कत्ल की जाएगी। हाँ, यानी कि जिस किसी को उसके भाई की तरफ से कुछ माफ़ी दे दी जाए, यानी कि जब क़िसास होता है यानी कि बदले में कत्ल किया जाता है, तो उसमें फिर 2 सिचुएशन और है। यानी कि एक कत्ल हो गया, अब अपोज़िशन पार्टी या तो 3 स्टेप ले सकती है, क़िसास कर सकती है या दियत कर सकती है या माफ़ी कर सकती है। पहला है वो क़िसास कर सकती है। क़िसास यानी क़िसास का मतलब क्या है? क़िसास का मतलब है जान के बदले में जान देना। जान के बदले में सामने वाले की जान ही ले लेना, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है दियत। दियत यानी कि कुछ रकम है, 100 ऊँटों के बराबर वो रकम है, वो सामने वाले अपोज़िशन को फिर वो दे जिसके यहाँ कत्ल किया गया है। तीसरा है या तो फिर वो दरगुज़र कर दे, माफ़ कर दे। तो ये 3 स्टेप हैं। तो जब भी कोई किसी का कत्ल करता है, तो फिर इन तीनों में से एक स्टेप उसको लेना होता है। क़िसास, पहला क़िसास, दूसरा दियत, तीसरा माफ़ी। क़िसास में जो है ना, बदले में जान के बदले जान ही मिले। बाज़ लोग इसी पे ही आमादा रहते हैं कि हमें जान के बदले जान ही चाहिए, जिसने कत्ल किया है हमें उसकी जान चाहिए ना।
جس نے قتل کیا، جس نے ختم کیا، جس نے مرڈر کیا ہے اسی کو بدلے میں ہمیں چاہیے ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ بعض وقت یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ختم کر دی گیا اب تو فوت ہو گیا، اب لیکن پیچھے کیا ہے کافی لوگ ہیں ان کا خرچہ پانی تو دقت ہوتی ہے انسان کو، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ دیت لے لیتے ہیں۔ دیت میں یہ ہوتا ہے کہ 100 اونٹوں کے برابر کی رقم ہوتی ہے، یعنی کہ آپ سمجھے کہ 1 کروڑ تقریباً 1 کروڑ روپے ہوئے انڈین، تو اس طرح سے پھر وہ جو اپوزیشن پارٹی ہے جس کا قتل کیا گیا اس کو دے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی اور لوگوں کے لیے آسانی فرمائی، ورنہ کیا ہوتا تھا اس سے پہلے پورے پورے گروپ ختم کر دیے جاتے تھے، جو کمزور گروپ ہے کمزور قبیلہ ہے پورا کا پورا وہ تہس نہس کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انصاف والی آیتیں نازل فرمائی اور لوگوں کے لیے آسانی فرمائی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف ہے اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو کوئی سرکشی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اگر اللہ کا حکم آ جانے کے بعد بھی کوئی ایسا کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معافی کی 2 صورتیں ہیں، ایک بغیر معاوضہ والی معافی یعنی دیت لیے بغیر ہی محض رضا الہی کے لیے معاف کر دے، اور دوسری صورت قصاص کی بجائے دیت قبول کر لینا ہے۔ اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے طالب دیت بھلائی کا اتباع کرے۔ وعداؤن الہی بإحسان میں قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے ہوئے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے، اور اولیاء مقتول نے اس کی جان بخش کر کے اس پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ عطا کرے۔ حل جزاء الاحسان الا احسان، سورہ رحمان میں آیا نا اسی طرح سے۔ اور یہ جو تخفیف کا جو بات اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ تخفیف اور رحمت یعنی قصاص، معافی یا دیت، تینوں صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص تم پر ہوئی ہیں، ورنہ وہاں پہ نہ قصاص تھی، یعنی کہ اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی تھی، دیت تھی ہی نہیں، اور اہل انجیل میں عیسائیوں میں صرف معافی تھی، قصاص نہیں تھا، دیت اور نہ ہی دیت تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے یہ تینوں چیزیں دی ہیں، پہلا قصاص، دوسرا دیت اور تیسرا معافی ہے۔ معافی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان معافی کر دے اللہ کی رضا کے لیے، اپوزیشن ہے نا، کبھی کبھی غلطی سے یا انجانے میں بھی انسان کا قتل ہو جاتا ہے، یا جیسے علاج کے دوران ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں اور پھر بھی کیا ہو جاتا ہے قتل ہو جاتا ہے اس سے، یعنی کہ کچھ ایسا اسے چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے پھر مریض کی جان نہیں بچا پاتا ہے۔ یہ تمام طرح سے سچویشن اور کنڈیشن ہوتی ہیں، یا انسان ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کی حالانکہ نیت نہیں ہوتی ایکسیڈنٹ ہونے کی، لیکن وہ تب بھی وہ سامنے والا اس کی گاڑی سے یا کوئی چیز سے وہ مارا جاتا ہے، تو پھر یہ سب اسٹیج اور اسٹیپ دیکھے جاتے ہیں، تو پھر انسان بہت سے اللہ والے ہوتے ہیں تو وہ معاف بھی کر دیتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ الحمدللہ آج ہمارا لیسن یہیں پہ پورا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔